Good morning, students. How are you? I hope you all are doing good and staying safe at home. Children, I am Nishata from Saraswati Group of Education. Children, today we are meeting for our second session of revision. Yes, and the revision is for our SA1 exams. You already have given one exam, that was FA1 exam, right? But in SA1 exam, you are having chapters up till 5, right? So you have to work hard for this. And today we will be doing our chapter number 4, 5 and the part of tables. Table number 1 and table number 2. These all things we are going to learn in our today's session. Okay, but children, before starting the session, I would like to give you a quick recap of what we have learned in our previous session, right? So in our previous session, the first chapter we learned was pre-number concepts. Now what is pre-number concept? In that spatial understanding comes, then description understanding comes and quantity understanding comes, right? I hope you all are clear with it, like top, bottom, near, far and more, less, all those things, right? Okay. Then in our second chapter, it was numbers up to 9, right? In that we have learned numbers from 1 to 9 and we have also learned number names up till 9, and the third thing was counting numbers up till 9. Okay, all these three things we did in chapter number 2. Now, what we did in chapter number 3? Yes, can anybody tell me? Yes, chapter number 3 was addition and subtraction of up to 9. Okay, we did addition as well as subtraction. We learned how to add one digit number with another one digit number. Okay, and we also learned what are ones, right? And how to add and how to subtract up to 9, right? These all things we learned in our previous session. Now in today's session, we will be starting with chapter number 4. The name of the chapter? Numbers from 10 to 20. And what we have learned in this chapter? We have learned the numbers from 10 to 20, then their names, then how the numbers are represented on abacus, and more than concept, less than concept, that is number ladder we did, right? And even comparing of numbers. What is comparison? Greater than, less than, that is called as comparison of numbers. Okay children, based on this, let me take up the first question, that is MCQ, multiple choice questions. Okay, so first question is count and write the numbers. See, you are already learned counting. Okay, but this chapter is of numbers from 10 to 20. So you get counting from 10 to 20. So first let us count how many are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. Okay, they are total 13. So what will be the answer? A. So we will take A. So children, counting is also important to learn. Only then you will be able to answer these kind of questions. Okay. Second is about abacus. 110 and dash ones equals to 13. What does it mean? इसका meaning क्या हुआ? 110 आप लोगे, अब think abacus on your mind. आपको पता है abacus कैसा होता है? उसमें 110 किधर आएगा? टेंस की प्लेस पर 1 बीट आएगा. ओके, सो टेंस की प्लेस पर 1 बीट है और वंस की प्लेस पर हम कितने बीट्स रखेंगे तो हमको 13 मिलेगा. थिंक, वंस की जगह पे क्या है? 3. तो कितने बीट्स हुए? 3 बीट्स. तो आंसर क्या आएगा? 110 एंड 3 वंस. व्हाट विल बी द आंसर? 3 वंस. मैंने यहाँ पे भी वंस लिखा है. अगर यहाँ पे सिर्फ 3 लिखूं तो भी आप 3 वंस लिखोगे. यहाँ पे वंस लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना कि दो जगह पे वंस. ओके, इट हैज टू बी कंसिडर्ड एज ओनली वन, लाइक दिस. 110 and dash equals to 13, right?
ओके, अब इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं ऐसा एबेकस भी आपको दे सकती हूँ या डायरेक्टली इस टाइप में आपको पूछ सकती हूँ। ओके, नाउ ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आप एबेकस पर देख रहे हो टेंस में बीट्स है और वंस में बीट्स है, राइट। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, विच नंबर इज शोन ऑन एबेकस। एबेकस पर आपको कौन सा नंबर दिख रहा है, तो हम लोग देखें, फाइंड करें। फर्स्ट वंस की प्लेस पर कौन सा दिख रहा है, 1 2 3 4 5, तो वंस की प्लेस पर क्या आएगा, 5। एंड व्हाट विल बी एट टेंस प्लेस, ओनली 1 बीट, इट मीन्स 110। So what will be the answer, 110 and 5 ones is equals to 15. So what is the answer, it's A, 15. See, did you notice कि एक ही टाइप का मैंने अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन पूछा, राइट। वैसे सेम ये काउंटिंग का भी ऐसे हो सकता है, नंबर नेम्स भी ऐसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, कुछ भी फॉर्म में एमसीक्यूज आ सकते हैं, राइट। नाउ मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज ब्लैंक्स। जैसे मैंने आपको बोला था, आपको हेल्प बॉक्स मिलेगा, उसमें ऑप्शंस होंगे, उसमें से राइट ऑप्शन जो है वो आपको चूज करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 more than 18. Now you are already aware about more than concept, right? 18 से एक बड़ा नंबर कौन सा हुआ, 1 more, it is 18 के बाद कौन सा आएगा, 19. So what will be the answer? Where is answer? It is over here, B. So इसमें हम क्या टिक करेंगे, आंसर एज B, राइट। सिमिलरली मैं ऐसे भी पूछ सकती हूँ 1 less than 18 is, ओके, तो उसमें 18 से 1 लेस होगा, या 2 less than 18, 3 less than 18, तो आपको ये कैलकुलेशंस आने चाहिए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज नंबर नेम फॉर 12 इज डैश। अब आपको मैंने बोला था जैसे 10 तक की आपके नंबर आने चाहिए, वैसे 10 से बड़े डिजिट्स के भी आने चाहिए। सो अब 12 का नंबर नेम क्या होगा, TWEL V and E. So let us see where it is. It is A. तो इसमें क्या आंसर आएगा, A, right? And last is SIXTEEN equals to dash. अब देखो, अगर नंबर्स नहीं आती होंगे, नंबर नेम्स, तो आप ये पहचान ही नहीं पाओगे कि ये क्या लिखा है और इसका मीनिंग क्या होगा। सो ये लिखा है 16, 16 इज इक्वल्स टू, ये नंबर नेम दिया गया है तो आपको इसका नंबर लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा है 16, इट इज 6। सो व्हाट विल बी द आंसर, सॉरी इट इज C, सो द आंसर विल बी C, राइट। सो आपने देखा ये भी नंबर नेम का था, ये भी नंबर नेम के रिलेटेड था, बट दोनों अलग फॉर्म में पूछे गए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज ट्रू और फॉल्स। व्हाट इज द क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, ये आंसर राइट है या रॉन्ग है वो आपको बताना है। ओके, फर्स्ट इज 10, 18, 29, आपको 4 नंबर्स दिए गए, राइट। इज द नंबर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। नाउ व्हाट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, एंड टू डायनोसर, छोटे से बड़ा। तो हमको जो ये दिए गए नंबर्स वो आपको देखने हैं और आपको थिंक करना है कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं वो छोटे से बड़े हैं, जो ये आपको अरेंज करके दिया गया है वो इट इज एन टू डायनोसर, स्मॉल टू बिग। सो पहले देखते हैं 10 स्मॉल है, उससे स्मॉल तो 9 है, और 9 तो सबसे लास्ट में दिया गया है। तो ये क्या हुआ, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर तो नहीं हुआ, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर होता तो ट्रू, पर यहाँ पे नहीं हुआ, तो व्हाट विल बी द आंसर, फॉल्स। ओके, बेस्ड ऑन दैट सेकेंड क्वेश्चन, 6, 12, 15, 17, 4 आपको डिजिट्स दिए गए हैं। ओके, आउट ऑफ दीज 6 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, इन सब में 6 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा कौन सा 6 है वो हमको बताना है। इज इट ट्रू और फॉल्स, सॉरी आई हैव रिटन ABC, इज इट ट्रू और फॉल्स। आप देखो क्या लगता है आपको, 6 सबसे छोटा है, इट इज 1 डिजिट नंबर, बाकी सारे 2 डिजिट नंबर है। तो आपको तो पता है 1 डिजिट नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन 2 डिजिट नंबर।
सो दिस इज ट्रू, राइट? तो हम क्या करेंगे? ट्रू। अगर यहाँ पे पूछा होता 6 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो क्या आता? फॉल्स, क्योंकि ग्रेटेस्ट तो इसमें और कौन सा नंबर है? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4, राइट? और इसी टाइप में और भी अलग अलग वेरिएशंस में मैं क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ। नाउ शिफ्टिंग टू चैप्टर नंबर 5. नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अप टू 20. आपने नंबर सीख लिए 10 से 20 तक, अब आपको उसका एडिशन भी तो सीखना है ना, राइट? सो इन दिस चैप्टर हमने क्या पढ़ा? वी लर्न एडिंग 2 डिजिट विथ 1 डिजिट नंबर. व्हाट वी लर्न? एक 2 डिजिट का नंबर होगा और एक 1 डिजिट का नंबर होगा, उन दोनों को कैसे ऐड करते हैं? तो पहले 2 डिजिट का नंबर ऊपर लिखने का टेंस और वंस में प्रॉपरली, देन उसके नीचे 1 डिजिट का नंबर कहाँ पे आएगा? इट शुड ऑलवेज बी इन वंस प्लेस. भूल से अगर आप टेंस की प्लेस पर रखोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, राइट? सो बी केयरफुल बाय डूइंग एडिशन. ओके, सिमिलरली विथ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्टिंग 1 डिजिट फ्रॉम 2 डिजिट. सब्ट्रैक्शन कैसे होता है? हमेशा बड़ा छोटे को माइनस करता है, छोटे में से बड़ा माइनस नहीं होता, राइट? वी सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर. ओके, एंड द थर्ड थिंग वी लर्न वाज वर्टिकल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन वर्टिकल लाइन से भी सीखे थे, राइट? और क्रॉसिंग आउट से भी सीखा था. सो दिस इज ऑल वी लर्न इन chapter number 5. Now based on that we are going to pick up some of the questions. Okay, so question number 1 is MCQ. Okay, अब किस टाइप के MCQ इसमें आ सकते हैं? Let us see. Okay, the first is 12 add 5. अब मैंने यहाँ पे आपको वर्टिकल नहीं दिया, हॉरिजॉन्टल दिया है, तो आप ये सॉल्व कैसे करोगे? आप रफ पेपर अपने पास रखोगे, उस पर टेंस वंस में 12 लिखोगे, ऐड करके 5 किस में लिखोगे? टेंस में? नो, इट विल गो इन वंस, और फिर आप ऐड करोगे तो 12 प्लस 5 कितने आएंगे? यस, इट विल गिव मी 17. तो मैं क्या लिखूंगी? 1770, राइट? यहाँ ये 5 स्मॉल डिजिट है, तो आप विथ हैंड्स ऑल्सो कैलकुलेट कर सकते हो. लाइक 12 प्लस 5, तो एड 5 करो. 12 ऑन माइंड, 5 ऑन फिंगर्स, 13, 14, 15, 16, 17. ऐसे भी आप आंसर ला सकते हो, बट दिस इज पॉसिबल जब आपके पास छोटे डिजिट हो एडिशन के लिए. अगर बड़ा डिजिट हो तो फिर आपको बुक में कैलकुलेट कर कर ही आंसर देना है. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज सिमरन हैज 13 पेन्स. His father gave him 4 more pens. Find the total number of pens. Right? सिमरन के पास कितनी पेन थी? मैंने बोला था ऐसा हो तो अंडरलाइन करने का, बट आप बुक में लिख सकते हो. सिमरन के पास 13 पेन्स थी और उसके फादर ने उसको कितनी दी? 4 मोर. तो ये क्या हुआ? एडिशन के सब्ट्रैक्शन. विच वर्ड इज कमिंग हियर? मोर. तो मोर का मीनिंग क्या हुआ? ये एडिशन हो रहा है. ओके, so this is related to addition. Find the total number of pens. हमको क्या फाइंड करना है? We have to find out total number of pens. टोटल कितनी पेन्स थी? तो सिमरन के पास 13 और प्लस 4 मोर, तो कितनी हुई? 14, 15, 16, 17. What will be the answer? 17. Right? Okay. Now third is 3 less than 13. तो ये कैसे करोगे? 13 में से 3 माइनस करने हैं. तो फॉर रफ वर्क मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ. आप कैसे करोगे? टेंस वंस, 13 इन टेंस एंड वंस प्लेस, माइनस 3. 3 1 डिजिट नंबर है तो कहाँ पे आएगा? एट वंस प्लेस, नॉट एट टेंस प्लेस. सो आई विल राइट हियर 3. ओके, नाउ यू ऑलरेडी नो 3 minus 3, it is 0. And what is this? 1. So 1 वापस carry forward, sorry carry it down, क्योंकि 1 minus 0 will give me 10. अरे 1 minus 0 will give me 1. So it is 10. Okay. So the answer is, where it is? It is 10. Okay. Like that way, third question.
fill in the blanks. Okay, so first is 12 plus 6. Okay, जो मैंने आपको समझाया था, 6 plus 2 8 and 1 का 1 यहाँ पे. So A B C में से कौन सा आंसर आएगा ब्लैंक्स में? It will be B. So what will be? B. Okay, next is 17 minus 2. Now 7 minus 2, yes, it will give me 5. And यहाँ पे 1. So what will be the answer? 15. Where is 15? C. So I'll take C. Similarly, 16 plus 3. 6 plus 3. Yes, it is 9. And 1 will be again coming down. So the answer is 19. Where is 19 in this? It is A. So I will take A. Got it? So this is the way I can ask blanks. इसलिए आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए. Okay. Next is true or false. Okay. 11 is shown as 2 tens on abacus. Abacus पे tens जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे tens का जो दिखता है उसमें 11 कैसे आप दिखाओगे? 2 tens. तो 2 tens करोगे, एक 10 और एक और 10 तो ये 20 हो जाएगा. तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 2 tens means 11. So answer is no. तो क्या होगा? False. Right? So this is also a way I can ask about tens and ones. Second is 110 equals to 100. मैंने आपको पढ़ाया था 110 means 10. Right? तो यहाँ पे 100 पूछा है तो आंसर क्या आएगा? False. Next, 110 plus 110 equals to 2 tens. Yes. Why? Because 110 is 10 and another 10 is 10. So 10 and 10 will give me 20 and 20 means 2 tens. Right? So this is true. अगर मैं यहाँ पे 2 once लिखती तो आंसर false होता. Okay. So this was about chapter number 5. Now moving on to tables. I know children, tables आपके लिए बहुत न्यू है, आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, बट यू हैव टू रिमेम्बर इट बिकॉज टेबल्स पर पूरा मैथमेटिक्स डिपेंडेड होता है. ओके, सो टेबल्स में एमसीक्यू में कैसे पूछ सकती हूँ? 1, ये कौन सी साइन है? मैंने आपको सिखाया था, दिस इज साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, राइट? 1 multiplied by 1 will give me 1. So answer is B. So you can see here. Similarly 2 times 5. अब टाइम्स का मीनिंग क्या हुआ? इट इज सेम एज मल्टीप्लीकेशन. मैं टाइम्स भी लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई भी लिख सकती हूँ, दोनों का मीनिंग सेम होता है. सो 2 times 5 मतलब 2 multiplied by 5 is equals to 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10. So what will be the answer? 10. Okay, next is 1 multiplied by 8. It is 8 क्योंकि 1 के साथ आप जो भी मल्टीप्लाई करते हो आपको वही नंबर मिलता है. Then next, okay, these are about MCQs. Now moving to blanks. Blanks में क्या पूछा है मैंने? 2 multiplied by 4. 2 4s are 8. तो कौन सा आएगा इसमें से? B. So I will take B. Next is 1 multiplied by 10. 1 multiplied by 10 क्या आएगा? Same number 10. तो 10 कौन सा है? C. So the answer will be C. And the last is 2 multiplied by 1. What will be the answer? 2 1s are 2. Yes, answer is A. So I will take A. Right? तो आपको टेबल्स तो आना कंपलसरी है बिकॉज इसी के ऊपर पूरा ये कैलकुलेशन डिपेंडेंट है. राइट? नाउ लास्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स. ओके, लेट मी इरेज दिस. फर्स्ट इज साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज, मल्टीप्लीकेशन की साइन कौन सी है? मैंने आपको क्या बोला था? इट्स अ क्रॉस. आपको CW में भी ये लिखाया था, राइट? तो यहाँ पे दी गई है साइन प्लस की, तो ये ट्रू हुआ? नो, देन इट इज अ फॉल्स. ओके, सेकेंड इज 3 multiplied by 2 is equals to 2 multiplied by 3. मैंने बोला था एडिशन में ऑर्डर चेंज करोगे तो आंसर सेम रहेगा. वैसे ही मल्टीप्लीकेशन में भी आप अगर आप ऑर्डर चेंज करोगे तो आंसर सेम ही रहता है बिकॉज मल्टीप्लीकेशन आता कहां से है? एडिशन से. सो 3 multiplied by 2 करोगे तो और 2 multiplied by 3 करोगे, दोनों का आंसर सेम आता है. तो इट इज ट्रू
Yes, so what we'll write? True. Next is 2 multiplied by 7 is equals to 15. अब 2 multiplied by 7 तो 14 होता है, तो आंसर 15 आएगा? No. So what is it? False. Okay. So children, this way I can ask tables, and this is the way I can ask in exams also. With this children, we end our session, and I hope children you have understood everything in this session and in the previous session, and I hope you will revise all the chapters thoroughly, because मैं कुछ भी कहीं से भी chapter में से पूछ सकती हूँ. Okay, each and every part is important, so please revise. Okay, and I hope children you understood everything and you enjoyed the session. So we'll be meeting back soon in our next lecture. Bye bye.